that we have here today. We have Mr. Nilesh Garg, Chairman Managing Director in the center. On his right is Mr. Prashant Mathur, Chief Executive Officer. Then we have Mr. Himanshu Singhal, who is the VP Marketing and Communication. And then we have Mr. Vineet Kumar, Nextec Lab, AGM Marketing. With the government declaring renewable energy as the nation's focus for the future, there is a newfound enthusiasm in this sector, especially in solar energy, which is witnessing extraordinary growth. At the industry level, there is a conscious effort to reduce the nation's carbon footprint and shift to cleaner, greener energy. This is leading to a vital shift in India's energy landscape. A major factor for this is favorable government policies and new initiatives that are making technology cheaper and solar energy affordable, not just for the industry but also for the common man, especially in Tier 2, Tier 3 cities and beyond. Together, we are trying to build a sustainable energy future for our country. As you all know, the government had fixed an ambitious target of 500 gigawatt renewable energy capacity by 2030. The target, which looked too ambitious earlier, looks achievable today, and we in the industry are determined to reach there. This is because, according to the government itself, there are already investment commitments of Rs 32 lakh crore in this sector. Growth in capacity has also been robust. According to official estimates, as of June 2025, India's installed electricity capacity from non-fossil fuel sources reached 235 gigawatt, with about 227 gigawatt from renewable energy. This includes 116 gigawatt of solar power, 52 gigawatt of wind power, and approximately 50 gigawatt of large hydropower capacity. So we are already halfway there. At Satwik Green Energy, we recognized our country's solar potential a decade ago when we started our operations. Since then, we have not only established our company as one of the leading names in the solar energy industry, but we are today one of India's fastest growing solar module manufacturers. This distinction has been achieved through a steadfast commitment to a sustainable future, a recognition that green energy is indeed our future, and driving that pursuit through manufacturing excellence, coupled with a focus on innovation, a no compromise on quality policy, and a firm commitment to our customers. At present, we have 3 state-of-the-art facilities in Ambala, Haryana, with an operational capacity of 3.8 gigawatt, and just added 1 gigawatt as disclosed in the RHP. This plant specializes in many products that have set benchmarks in quality and performance, which include solar PV modules of monoPERC monofacial technology, monoPERC bifacial technology, and the latest in TOPCon bifacial technology. Satwik Green Energy is also one of the few integrated players that offers end-to-end solutions through our EPC services. Today, we have reached a stage where we do not need to talk about our products. Our customers do that for us, as our products are being used in some of India's most significant solar projects. Today, as we prepare for our IPO, we have even more ambitious plans in our hands and a bigger resolve to realize those ambitions. The Rs 900 crore IPO will fund our expansion plans and will be instrumental in our future growth. It will fund our new manufacturing facility in Odisha, which will be our strategic move to become a fully integrated solar powerhouse and cement our position in the top layer of solar energy equipment producers in the country. This expansion will more than double our capacity and give us a competitive advantage against our peers and help take India closer to the 2030 target. Our finances are strong and we have had a healthy growth in our revenues and profits over the last 2 years. With demand for solar projects and energy increasing exponentially, we will be prepared to meet the increased demand for solar cells and modules, and our numbers will only improve. We are ready for the challenge and take India's move towards a green, sustainable future as our own mission. The blueprints are ready and we are ready to march on this path. So, थोड़ा बहुत इशू के बारे में. So, हमारा जो प्राइस बैंड है वो 442 से 465 पर शेयर है. ये फ्रेश इशू और OFS का दोनों का मिक्स है. फ्रेश इशू करीब 700 करोड़ का है और OFS 200 करोड़ का है.
जो हम लोग फंड्स रेज कर रहे हैं उसमें हम लोग सोलर पीवी मॉड्यूल 4 गीगावाट की फैक्ट्री के लिए हम ये उड़ीसा के अंदर में लगाएंगे। इसके अलावा हम लोग हमारा जो डेट रीपेमेंट है कंपनी के अंदर में और सब्सिडरी सात्विक सोलर के अंदर में उसको हम रीपेमेंट करेंगे, तो लॉन्ग टर्म डेट को हम लोग रीपे करेंगे और थोड़ा सा पोर्शन जीसीपी के अंदर में जाएगा जनरल पर्पसेस के लिए। हमारे बीआरएलएम जो है वो डैम कैपिटल, एनबिट और मोतीलाल ओसवाल है और लिस्टिंग विल बी एट बोथ एनएसई एंड बीएसई। हमारा जो इशू है वो ओपन होगा 19 तारीख को और क्लोज होगा 23 तारीख को। अलॉटमेंट 24 तारीख को और रिफंड्स और अनब्लॉकिंग ऑफ ASB अकाउंट्स 25 तारीख को, क्रेडिट 25 तारीख को और 26 तारीख को ट्रेडिंग शुरू होगी। रिटेल पोर्शन इज 314 करोड़ का। सो हम लोगों ने 2016 के अंदर में हमारा पहला मॉड्यूल निकाला था। उस टाइम पे 125 मेगावाट की हमारी लाइन थी और मैंने 2021 में ज्वाइन किया था और उसके बाद में हम लोग कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। आज हम लोग EPC बिजनेस में भी हैं, हम लोग टॉप मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम अ बैंकेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो हम लोग टॉप, हमारे पास PV टेक बैंकेबिलिटी है, टेक्निकल बैंकेबिलिटी PVL की भी है और हमने 2 गीगावाट 2025 के अंदर में डाला था। आज हमारी 31 मार्च को जो कैपेसिटी है वो 3.8 गीगावाट थी। उसके बाद हमारा 1 गीगावाट का और एक्सपेंशन हुआ है। सो करंट कैपेसिटी हमारी 4.8 गीगावाट की है। हमारा जो मेन USP रहा है वो हमेशा रहा है हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। सो अगर आप देखेंगे तो हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंटिन्यूसली 80% से ऊपर का रहा है, जो इस इंडस्ट्री के अंदर में काफ़ी मुश्किल है अचीव करना। और उस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि हमारा नॉट ओनली सेल्स जो है हमारा बहुत रोबस्ट है और मैं आगे उसके ऊपर और बात करूँगा, बट ऑल्सो ऑपरेशनली हम लोग बहुत एफिशिएंट हैं, बी इट इन टर्म्स ऑफ परचेज प्लानिंग, बी इट टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट। इट शोज़ कि कंपनी मैन्युफैक्चर और सेल्स दोनों बहुत रोबस्टली कर रही है, तो ही 80% के ऊपर का यूटिलाइजेशन होता है। हमारी ऑर्डर बुक 31 मार्च को ओवर 4 गीगावाट थी और अगर आप देखेंगे हमारे टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्टली सारी टेक्नोलॉजी हमारे टॉपकॉन के अंदर में ही है। मोनोपर्क आपको ज्ञात होगा कि मोनोपर्क टेक्नोलॉजी जो है थोड़े टाइम में ऑब्सलीट हो जाएगी, बिकॉज टॉपकॉन टेक्नोलॉजी बेटर एफिशिएंट मॉड्यूल्स हैं, बेटर परफॉर्मेंस है और एन टाइप टेक्नोलॉजी पी टाइप टेक्नोलॉजी से बेटर भी है। तो फ्यूचर एन टाइप टॉपकॉन के अंदर में ही है। अगर आप हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का ग्रोथ देखेंगे तो कंटिन्यूसली हम लोग पिछले 9-10 साल के अंदर में ग्रो करते हैं और रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 साल के अंदर में हम लोगों ने करीब 88% से कैगर से ग्रो किया है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो करीब 285% कैगर पे ग्रो किया है। ROE ROCE भी ओवर 60% है, जो बहुत सॉलिड नंबर माना जाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.35 है, बट अभी हम जैसे डेट रीपेमेंट करेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म डेट ऑलमोस्ट निल हो जाएगा। बाकी शॉर्ट टर्म डेट जो है वो वर्किंग कैपिटल होता है, तो वो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो कर रहा है वैसे वैसे उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। हमारे अभी 3 प्लांट हैं, तीनों अभी अम्बाला में हैं। तो प्लांट 1 जो है वो मोनोपर्क मॉड्यूल्स के लिए है और 2 और 3 प्लांट जो है वो टॉपकॉन मॉड्यूल्स बनाता है। तो इसके अलावा हम एंसिलरीज के अंदर में भी जा रहे हैं, जिसके अंदर में एनकैप्सुलेंट EP और POE मैन्युफैक्चरिंग का भी हम प्लांट अभी अम्बाला में शुरू कर रहे हैं। कि सोलर जो एनर्जी जो भी ग्रो कर रही है, डिमांड जो भी ग्रो कर रही है वो मोस्टली रिन्यूएबल एनर्जी से ही आ रही है और सोलर नेचुरल है और उसका मेजॉरिटी शेयर आ रहा है। उसका रीज़न टैरिफ रेट्स सोलर के सबसे चीप हैं, मॉड्यूल की प्राइसेस कम होने के कारण, फिस्कल गवर्नमेंट का सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी सॉर्टेड है, ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया का पुश है, वो भी सोलर की डिमांड को ड्राइव कर रहा है और करेगा आने वाले टाइम में। और
और बहुत सारे लार्ज एस्टेब्लिश प्लेयर्स इसके अंदर में आ रहे हैं, तो फंड्स आर अवेलेबल। और इंडिया के अंदर में अभी थोड़ा टैरिफ ट्रम्प इशू चल रहा है, बट इंडिया से एक्सपोर्ट भी बहुत होने का पोटेंशियल है, और वो आने वाले टाइम में जब ये थोड़ा सॉर्ट आउट होगा, तो टैरिफ इश्यूज जब सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो वापस से वी विल सी दैट इंडिया विल बिकम एक्सपोर्ट पावर हाउस एज वेल। की ड्राइविंग फोर्स जो इंडस्ट्री की टेलविंड्स को बढ़ा रही है, उसका पीएम सूर्यग्रह योजना है, जो बहुत मैसिवली एक डिमांड रेजिडेंशियल रूफटॉप से लेकर आ रहा है। पीएम कुसुम योजना है, जो सोलर पंप्स और सोलराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पंप्स के ऊपर काम कर रहा है, और जो लार्ज यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स हैं और पीएसयूज को जो मैंडेट दिया हुआ है। सो ये ऑल एंड ऑल मिलके बहुत मैसिव डिमांड क्रिएट कर रहा है और ग्रो कर रहा है। उसके रीज़न मैन्युफैक्चरिंग के को बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू डेवलप द एंटायर इकोसिस्टम इन इंडिया। तो उन्होंने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर दोनों किए हैं कि अगर आपको इंडिया में बेचना है तो आप इंडिया में ही बनाइए। तो ALMM 2 और ALMM 3 भी अभी डिक्लेयर हुआ है। तो दीज आर ऑल सपोर्टिंग द इकोसिस्टम बिल्ट अप इन इंडिया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोलर मॉड्यूल बनाते हैं, EPC करते हैं, O&M करते हैं। अब हम सेल मैन्युफैक्चरिंग में भी जा रहे हैं। हम लोगों ने गुजरात के लिए भी कोशिश किया था, बट हम लोग अल्टीमेटली उड़ीसा गए, बिकॉज सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में पानी और बिजली का काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है, और बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सेल की कॉस्ट के अंदर में। तो हम लोग वहाँ पर अभी 4.8 गीगावाट का सेल और 4 गीगावाट का मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहे हैं। उड़ीसा क्योंकि साउथ ईस्ट पार्ट में है, तो वो लॉजिस्टिकली बहुत फेवरेबल है। इम्पोर्ट्स क्योंकि सेल बनाएंगे तो वेफर के इम्पोर्ट्स भी होंगे। तो अभी हम मुंद्रा के थ्रू अम्बाला में लेके आते हैं, तो हमारे को 45 दिन लग जाते हैं रॉ मटेरियल मिलने में, जो हमें वहाँ पे 15-20 दिन में मिल जाएगा। उसके अलावा कैपिटल सब्सिडी, इलेक्ट्रिक रेट्स काफ़ी कम है। सो ये काफ़ी हमारे को हेल्प कर रहा है उड़ीसा के अंदर में करने के लिए। हम अगर आप हमारा ग्रोथ पाथ देखेंगे तो हमने हमेशा टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया है। मोनोपॉल टेक्नोलॉजी हो, जब वो नई नई आई थी तो वी वर वन ऑफ द फर्स्ट टू अडॉप्ट इट। टॉपकॉन के अंदर में भी M10, G12 और अभी वी आर ऑलवेज अहेड ऑफ द कर्व इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर भी हमारा काफ़ी फोकस रहा है। सो और हम हमेशा LCOE के ऊपर काम करते हैं, सिस्टम कॉस्ट को कम करें कस्टमर के लिए, जिससे मोर एंड मोर अडॉप्शन बढ़े सोलर का। सारे बेल्स एंड विसल्स जो चाहिए बेचने के लिए, चाहे वो थर्ड पार्टी बैंकेबिलिटी हो, इंश्योरेंस हो, ऑडिट्स हो, सर्टिफिकेशंस हो, वो सारे हमारे पास में हैं ऑपरेट करने के लिए। हम लोग मल्टीपल चैनल्स पे बेचते हैं, तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन 1 or 2 सेगमेंट्स। हम लार्ज यूटिलिटी कस्टमर को भी बेचते हैं, हम C&I को भी बेचते हैं, हम रिटेल में भी बेचते हैं। हमारे करीब 52 डिस्ट्रीब्यूटर, 53 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिनके डीलर्स, सब डीलर्स हैं। तो हमारा पूरा कवरेज इंडिया में है। आपके गुजरात में भी हम लोग काफ़ी बेचते हैं, और हमारे खुद के वेयर हाउसेस भी हैं, जिससे बिकॉज प्राइसेस का कोई फ्लक्चुएशन होता है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स थोड़ा स्टॉक रखने से कभी कभार कतराते हैं, बिकॉज उनको लॉस ना हो जाए। तो हम लोग वी ऑल्सो इंश्योर सम स्टॉक्स आर अवेलेबल। I want you to give us 2 points. Why should an investor trust you? An investor should trust us because मतलब हमें 10 साल हो गए हैं ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में। हम लोगों ने पहले 4-5 साल अपना नाम बनाया है इस इंडस्ट्री में। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जो कि 25 से 30 साल फील्ड में चलना चाहिए। तो हमारा कंपनी का एक ब्रांड बन चुका है, जिससे कस्टमर्स हमें ट्रस्ट करते हैं फॉर देयर प्रोडक्ट। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट उनके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है अगर कोई भी कंपनी या कोई भी रेजिडेंशियल ओनर एक सोलर पावर प्लांट लगाता है। तो हमें लगता है कि
हम उस आज के दिन जो हमने ब्रांड एक्विटी इतने सालों में बनाई है उसका आगे भी यूटिलाइज कर पाएंगे। एंड सेकंड ये है कि नाउ अगर अब हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, जैसे सोलर सेल में कर रहे हैं और बाकी अदर रॉ मटेरियल्स में भी हम प्लान कर रहे हैं, तो हमें बेटर कंट्रोल ओवर आर सप्लाई चेन एंड कॉस्ट मिलेगा उससे, तो जिससे आने वाले टाइम में वी कुड सी इम्प्रूवमेंट। मैं आपको इसके अलावा एक और रीज़न दे देता हूँ, बोनस। थर्ड पॉइंट। सो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आप इन्वेस्ट करें तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिस कंपनी के आपको क्योंकि कंपनियां पीपल से बनती है, सो आपको उसके मैनेजमेंट, उसकी लीडरशिप, उसके प्रमोटर्स के ऊपर में ट्रस्ट होना चाहिए। सो उन्होंने पास्ट में क्या किया है जिससे प्रेजेंट के अंदर में आपको दिखेगा। तो अगर आप हमारा पास्ट देखेंगे तो हम लोग कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप कंपनी है। हम लोगों ने आज तक कोई भी फंड रेजिंग नहीं की है। दिस इज़ द फर्स्ट फंड रेज वी आर डूइंग। और इस स्केल के अंदर में कंपनी ऑपरेट कर रही है कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप, सिर्फ डेट रेज करके। सो वो एक रिमार्केबल जर्नी रही है हमारी। सो ज़ीरो इक्विटी एनीवेयर आउटसाइड, सो दैट इज़ वन। हम लोग ने कम्प्लीटली कंपनी को ऑर्गेनिकली ग्रो किया है, हमने कोई भी इनऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं की है। सो जो हमने पिछले 10 साल में जो हमने कमाया है वो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। प्रमोटर्स ने पैसा नहीं निकाला है बिजनेस में से। तो हम लोगों ने कम्प्लीटली कंपनी को ग्रोथ करने के ऊपर में फोकस किया है। हमारा विजन बहुत क्लियर है। हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर में लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं। हम लोग सिर्फ मॉड्यूल या सेल नहीं, हम और विजन क्लियर करके, हम बैकवर्ड इंटीग्रेट करके हम एक पूरी एक फुली इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन को हम बिल्ड कर रहे हैं, फ्रॉम इंगट टिल मॉड्यूल एंड इवन ईपीसी। हम पंप्स भी कर रहे हैं। सो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलेगा आपको। Promoters are young, so they have 30 years of their life which they can give to this company. And why did you choose Madhya Pradesh? So मध्य प्रदेश के अंदर में हमने देखिए उड़ीसा इसलिए चूज किया क्योंकि वहाँ पर पोर्ट का बेनिफिट था, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर था और सब्सिडी थी। मध्य प्रदेश के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आई है और वो अभी रिसेंटली है, जिसके अंदर में वो लैंड सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। और पानी और बिजली भी उड़ीसा जैसे ही रेट्स हैं, नॉट एग्जैक्टली वैसे बट उसके आसपास में। और नर्मदा रिवर नर्मदापुरम में है ये, तो नर्मदा से पानी भी इंश्योर कर रहे हैं। और हमारे को वहाँ पर बिग चंक ऑफ लैंड अवेलेबल हो रहा है, बिकॉज हमारा काम मैन्युफैक्चरिंग है। प्रॉब्लम क्या होती है कि एक्सपेंड आप जब करो तो लैंड एक्विजिशन बिकम्स अ बिग इशू। आपको बड़ा चंक मिलता है तो वो इतना दूर मिलता है कि वहाँ पे आपको वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ नहीं मिलेंगे। और जब लैंड चंक आपको सिटी के पास मिलता है तो वहाँ पर आपको बहुत महंगा मिलता है और फिर वहाँ पे अदर इश्यूज होते हैं। सो हमारा जो काम है वो लैंड के ऊपर ज़्यादा फोकस हो जाता है प्रोजेक्ट से। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम लोगों ने वो मध्य प्रदेश को चुना है फ्यूचर के लिए।